السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیا آپ بھائی میں کب سے کال کر رہا ہوں, آپ دیکھ جا رہے ہیں. بھائی کون بول رہا ہے؟ کرم بول رہا ہوں یار, اس دن فون کیا تھا. ہاں ہاں بھائی میں راستے میں تھا, بتائیے. تو ابھی آپ فرصت میں ہیں؟ ہاں بتائیے. میں کب سے ٹرائی کر رہا تھا, آپ سے بزی جا رہا تھا. اچھا اچھا. گھر پہنچ چکے آپ کیا؟ ہیں؟ آپ گھر پہنچ چکے ہیں؟ ہاں یہی تو دقت ہے. کیا دقت ہے؟ دیکھیے پہنچ گئے گھر. گھر پہنچنے میں دقت ہے؟ ہاں میرے بھائی باہر آزاد ہیں, گھر کے اندر پابندی ہے. بات نہیں کر پائیں گے. ہاں تھوڑا مطلب اصل میں والد صاحب تھوڑا مطلب بھائی سکتے ہیں نا, فون پہ بات کرتے کرتے دیکھ لیں گے, میرا فون بھی چھین لیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر مطلب تھوڑی بہت بات کرنی ہے 2-4 منٹ تو کر لیجیے, اگر لمبی بات کرنی ہے تو بھائی کل دن میں فون کیجیے. زیادہ دیر سے بات نہیں کرنی ہے. مجھے صرف آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کو گلے میں لٹکانے سے پھر کے کہا ہے, تو وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی شرک ہے؟ نہیں بتوں والی. بتوں والی. اور اگر قرآن آیت اگر کوئی انسان اگر گلے میں لٹکاتا ہے تو وہ شرک ہے یا نہیں بدعت ہے؟ بدعت. تو اس کی کوئی حدیث ہوگی آپ کے پاس؟ اچھا بدعت کی حدیث ہوتی ہے؟ بدعت کی حدیث نہیں ہوتی. نہیں مطلب اگر آج کی تاریخ میں ہم بھائی یہ جو کنڈے ہیں کنڈے کو منا رہے ہیں تو اس کی بدعت ہونے کی آپ کو مطلب حدیث چاہیے؟ نہیں دیکھو بھائی بدعت وہی کام ہوتا ہے جو حدیثوں میں نہ ہو, بعد میں آ گیا ہو. تو اب میں بدعت کی حدیث کہاں سے لے کے آؤں؟ اب میں حدیث بناتا تو بھائی ہوں نہیں, اگر بنانے والا حدیث ہوتا تو بھائی میں کوئی بنا بھی دیتا. نہیں بات سنیے, میں نے ابھی حدیث پڑھ ہی رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ کہتا ہے حلال کیا ہوا وہ حلال, جو حرام کیا وہ حرام, اس پر کوئی وعید نہیں لگائی تو اس پر وہ معاف ہے. حدیث پڑھ رہا تھا, شاید لگ بھگ بخاری کی حدیث ہے یا کسی کی حدیث. ہاں صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. تو ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی یہی فرماتا ہے جب نبی تمہیں جو دے وہ لے لو, جس چیز سے منع کرتے ہاں وما آتاکم رسول فخذوہ. ہاں تو ٹھیک ہے. تو پھر جب اللہ کے رسول نے کیا منع کیا ہے اس بارے ہاں قرآن ہاں قرآن کی آیت ہو, قرآن کا منمانا استعمال کرنا جو ہے بھائی یہ ایک مطلب اتیاچار ہے, ظلم ہے قرآن کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن بولیے میں پھر بولوں گا. ہاں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کا بھائی اگر کوئی بھی انسان منمانا استعمال کرتا ہے تو بھائی یہ ظلم ہے قرآن کے اوپر. اگر ہم مطلب بھائی یہ قرآن ہے, اب اس کو کوئی آج کا آدمی اپنی عقل سے کہے کہ یار ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, فالتو ٹوائلٹ میں بھائی اتنی دیر بیٹھتے ہیں, لو یار ٹوائلٹ میں بیٹھے بیٹھے ہم قرآن کو پڑھ لیں. اور جب سامنے والا اس کو ٹوکے گا, اے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, ٹوائلٹ میں قرآن پڑھ لو, تو وہ سامنے والا کہے گا ارے یار قرآن ہی تو ہے بھائی, قرآن ہی تو ہے, مطلب تم کتنے بڑے شیطان ہو جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہو. لیکن اس کو سمجھانا پڑے گا بھائی قرآن کو ویسے پڑھنا ہے جیسا اس کا بھائی پڑھنے کا طریقہ ہے, تو اسی طریقے سے قرآن کا جو استعمال ہے وہ ہم کو ویسے ہی کرنا ہے جو ثابت ہے. اب ہم قرآن کی آیتوں کو لکھ کے گلے میں باندھ کے لٹکا کے ٹہل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو یہ کہاں تک جائے گا آپ بتاؤ میرے بھائی. تو مطلب یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا, یہی کہا. ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ نے مطلب بھائی وہ تعویذ کو پہنا یا ان مطلب اپنے بچوں کو تعویذ پہنائی, ایک بھی صحیح حدیث میں نہیں. ہاں ضعیف حدیث آتی ہے, موضوع حدیث آتی ہیں بہت ساری, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حسن حدیث نہیں آتی ہے؟ ہاں حسن بھی آتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی گلے میں پہنا دیا کرتے ہیں. ہاں تو وہ جو بھائی وہ جو حسن ہے اس کو اگر بھائی وہ 2 محدثین نے اس کو حسن کہا ہے تو باقی 8-10 محدثین نے اس کو کہا ہے ضعیف ہے, تو ہم 2 کو لیں گے یا 8-10 کو لیں گے؟ ایک بات بتا رہا ہوں, امام ترمذی علیہ رحمہ نے
جب بھی کوئی حدیث بیان کی ہے تو جتنی بھی صنعت سے وہ حدیث آئی ہے اس لیے وہ ہمیشہ صحیح حسن اور صحیح لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ الگ الگ صنعت سے الگ الگ۔ اچھا بھائی یہ بتائیے قرآن جو ہے بھائی یہ کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو اللہ کے نبی کا جب مطلب بھائی آخری ایک دم ٹائم تھا تو اللہ کے نبی کو مطلب بھائی وہ پین ہو رہا تھا، درد ہو رہا تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کبھی بھی میرے بھائی وہ قرآنی تعویذ اللہ کے نبی کے بھائی وہ نہ تو ہاتھ میں باندھا، نہ گلے میں باندھا، نہ سر میں باندھا۔ اگر یہ جائز ہوتا تو قرآن تو الحمدللہ اللہ کے نبی پہ نازل ہو رہا تو ان کو مطلب بھائی کتنی بڑی مطلب بھائی وہ آ جاتی، ایک دم سارا درد ان کا بھائی ایک دم دور ہو جاتا، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ قرآن کا منمانا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے تو شفا ملے گی، یہ نہیں ہے قرآن کو پانی میں گھول کے بس ہم لوگ پی جائیں اور بس شفا مل گئی۔ تو عقیدہ ایسا ہو جاتا ہے نا۔ اور بھائی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھائی وہ جس نے تعویذ کو پہنا لٹکایا اللہ نے اس کو تعویذ کے حوالے کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تعویذ چاہے کوئی بھی ہو، قرآنی ہو، کفریہ ہو، بت والی ہو، غیر قرآنی ہو، تعویذ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تاج رسول کو تعویذ لے لو۔ تعویذ لے لو بھائی کہاں حکم دیا بھائی بتا دیجیے، ہم بھی جا کے تعویذ بنوا لیں بھائی اپنے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے۔ ریٹ کیجیے، میں ابھی داؤد شریف کی حدیث سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہاں تو اس میں مطلب بھائی یہ الفاظ ہیں کہ آپ لوگ تعویذ پہن لو، تعویذ لے لو، اس کا حکم ہے۔ ہاں تو تعویذ کن سے لے لیں؟ جو لوگ پہنے ہوئے ہیں ان سے لے لینا کہ بھیا اتارو اس کو۔ نہیں میں ابھی بتا دے رہا ہوں، مجھے وہ حدیث کھول لینے دیجیے۔ ہاں چلیے آپ ڈھونڈ لیجیے، خیر ایسی کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، بلکہ بھائی یہ مسند احمد کی کسی بھائی یہ صاف صاف مطلب بھائی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے تمام حدیث کی پوری حدیث کی کتابوں کو چھان ڈالا پڑھ لیا ہے نا؟ بھائی میں نے کیا کہا، جب آدمی کہتا ہے کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس کے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہے بتائیے۔ میں نے تو آج تک میرے بھائی جتنے عالموں سے پوچھا، جتنا میں نے پڑھائی کی، مجھے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں اللہ کے نبی تعویذ پہنتے تھے یا صحابہ تعویذ پہنتے تھے یا صحابہ کے بچوں کو نظریں لگتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے تھے۔ ایک بھی حدیث ہم کو نہیں ملی، نہ ہی کوئی آثار ملا۔ لیکن ہاں بلکہ اس کے جو الٹ ہے، الٹ ہم کو ملا کہ اللہ کے نبی کے پاس بھائی وہ 10 لوگ آتے ہیں تو 9 لوگ کا بھائی وہ اللہ کے نبی ان کی بیعت بھائی وہ لیتے ہیں، لیکن ایک کی بیعت کو بھائی وہ نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ تعویذ پہنا ہوتا ہے۔ بیعت اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ وہ بتوں کی تعویذ پہنا کرتے تھے۔ تعویذ تو ہے نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تعویذ چاہے کوئی بھی ہو، بتوں والی ہو، غیر بتے والی ہو، نہیں بھائی بنا اللہ کی مرضی کے بھائی قرآن بھی شفا ہم کو نہیں دے سکتا ہے۔ ارے بھائی آپ جب سلف کے اقوال پڑھیں گے اس تعلق سے تو سلف کے اقوال کے اللہ کے نبی سے ہٹ کے آ جائیں گے؟ نہیں وہی تو بتا رہے ہیں نا آپ کو، سلف نے ایسا سمجھا ہی نہیں جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا چلیے آپ ہم کو بھائی وہ 4-5 جو آپ کے بھائی وہ سلف صالحین ہیں آپ ان کا نام بھائی آپ ہم کو بتا دیجیے، ہم اپنے اور جو ہمارے بھائی 25-30 جو بھائی وہ سلف ہیں ہم آپ کو ان کا نام بتا دیتے ہیں۔ اب بتائیے آپ کن کی مانیں گے کن کی نہیں مانیں گے؟ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف۔ اب آپ کے سلف کہہ رہے ہیں پہننا چاہیے، میرے سلف کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہننا چاہیے، تو اب ہم دونوں میں آپس میں ہو گیا اختلاف۔ اب ہم کو جانا پڑے گا اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف۔ تو اللہ کے نبی کی پوری سیرت میں انہوں نے کبھی زندگی میں تعویذ نہیں پہنا بھائی، نہ ہی قرآنی، نہ ہی بتوں والی، نہ ہی کوئی والی، کوئی تعویذ ہی نہیں پہنا۔ اور تعویذ جو ہوتی ہے، تعویذ مطلب خالی وہ پہننے کا نام نہیں ہے، تعویذ مطلب بھائی وہ ہر وہ چیز ہے جس کو مطلب بھائی وہ ٹھوکا جائے، لٹکایا جائے، جلایا جائے، باندھا جائے، پھونکا جائے، گاڑا جائے، ٹھیک ہے، یہ سب تعویذ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا عقیدہ بنا لیا جائے کہ اس کو پہننے سے، لٹکانے سے، ٹھوکنے سے، پھونکنے سے مطلب بھائی وہ بلائے مطلب بھائی وہ دور ایک دم دور ہو جائیں گی، شفا مل جائے گی، برکت آ جائے گی۔ تو یہ سب کوئی مطلب کوئی یہ سب تعویذ گنڈے والے کام تو بھائی یہ جاہل لوگ کرتے ہیں۔ بولیے اس کے بعد
अरे बोलिए ना मेरे भाई, आप हदीस सबको दीजिए अभी जो आप बता रहे थे। नहीं, आप बोल रहे थे इसलिए मैं चुप था। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, एहसान करते हैं। अब आप बोलिए आराम से। मैं बोल रहा हूँ कि आपने भी कहा कि जो अकीदा से अगर इंसान कुछ भी लटका है, उसका अकीदा ये हो जाए कि उसकी शिफा मिलती है, तो वो शिर्क हो जाता है ना। तो जनाब अभी आपके मुआशरे में होगा या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं अपने मुआशरे में या मैं अपने कोलकाता या बंगाल में देखता हूँ कि जब किसी को जॉन्डिस होती है ना, तो वो गले में धागा बांधता है, वो जड़ी बूटी होती है और उसको लटकाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी जॉन्डिस झड़ जाती है। हाँ, तो पीलिया लोग जाते हैं जड़वाने के लिए, तो वो भी शिर्क होगा कि हो गया ना भाई। देखिए जो ये पीलिया होता है, ठीक है, अब इसका अल्हम्दुलिल्लाह जब इलाज आ गया है, आजकल तो भाई ऐसी ऐसी दवाएं पिलाई जाती हैं कि एक दिन में पीलिया उसका ठीक हो जाता है। अब ये झाड़ फूक वाला अमल भाई वो मेरे भी हो चुका है पीलिया भाई। हम तो आज तक भाई नहीं गए कि मेरे को झाड़ दो मेरा ठीक हो जाए। आप समझ रहे हैं भाई, वो झाड़ फूक में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह के जो कलाम को अगर पढ़ के अपने ऊपर भाई वो हम दम करेंगे, उसको फायदा मिलेगा हमें। लेकिन मुझे तो मैंने बहुत आपके मतलब के लोग से बात किए हैं, वो तावीज पर एतराज करते हैं लेकिन दम को मानते हैं वो। हाँ, तो दम साबित है ना कुरान हदीस से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहाँ तुम्हें दर्द हो 3 बार सीधे हाथ को रख के बिस्मिल्लाह 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 पढ़ लो, ठीक है। अपने ऊपर भाई वो सूर्य फलक सूर्य नाज को पढ़ के दम करो। और दम उसको बोलते हैं कि अपने अपने हाथों पे ऐसा मतलब भाई वो फूक मारना कि थोड़ा सा थूक आ जाए और उसको अपने बदन पे मल लेना। तो ये तो साबित है ना। अच्छा, आप तावीज गंदे की दलील हमको दीजिए कि अम्मी आयशा ने अल्लाह के नबी की तावीज बांधी या अल्लाह के नबी ने अपने बच्चों के नवासों की तावीज बांधी। भाई क्या उनको नहीं भाई वो नजरें लगती थी, उनको नहीं बीमारी आती थी? हाँ मैं भी ढूंढ रहा, घबराइए नहीं आप। आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन भाई आप ढूंढ नहीं पाएंगे कभी ये। मैं हाकिम अल मुस्तदरक की आपको हदीस में घबराइए। हाँ, हाकिम की दीजिए। हाकिम में क्या सारी की सारी हदीसें सही हैं? सही बुखारी और सही मुस्लिम में सारी हदीसें सही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे तो इजमा है और जो ना माने वो इजमा का मुनकिर। अच्छा, और इसमें अगर मैं दिखा दूं कि इसमें भी ज़ईफ़ हदीस में से वो कलाम है, कलाम, ठीक है, वो कलाम होता रहा है होता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह आज तक मतलब ये 100% कोई साबित भाई आज तक ना कर पाया ना इंशाल्लाह कर पाएगा कि बुखारी मुस्लिम में भाई वो मतलब कोई भी ज़ईफ़ हदीस है। लोग कहते हैं 200 हदीसें से मतलब भाई वो ज़ईफ़ है, कोई कहता है 13 हदीसें ज़ईफ़ है, वो सब कलाम है। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ बोल। अरे भाई देखिए, हम ये कह रहे हैं कि उम्मत को तावीज गंदों के चक्कर में हम डाले क्यों? भाई सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्या हमारे पास कुरान नहीं है, क्या हमारे पास अल्लाह के नबी का फरमान नहीं है? हम क्यों अरे इन तो सब भाई वो दुआ तावीज के चक्कर में पड़े? तावीज में रहता क्या है भाई? हम्म तावीज में रहता क्या है? भाई एक तावीज अभी हमारे भाई ने व्हाट्सएप पे हमको भेजी थी, तो उन्होंने पूरी तावीज को काटा, उसके अंदर कपड़ा था, कपड़े के अंदर एक और कपड़ा था, उसके अंदर मोम था, उसके अंदर कागज था, कागज के अंदर मतलब भाई अरबी मुद्रा हुआ था भाई वो नून 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 वाओ 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 हे और उसके नीचे कोई कार्टून ऐसा कोई आदमी आदमी मतलब भाई वो बना हुआ था। अब बताइए, अब लोग उसको पहन के टहल रहे हैं। मेले के अंदर आयतल कुर्सी, ठीक है, 25-25 रुपए की लोग उसकी भाई वो बेच रहे हैं। अब वो आयतल कुर्सी भाई वो लैट्रिन में भी जा रही है, टॉयलेट में भी जा रही है, हर जगह आदमी मतलब उसको गंदे हाथों से भी छू रहा है, उसके ऊपर नहा भी रहा है, उस पर साबुन भी पड़ रहा है, शैम्पू भी पड़ रहा है, पसीना भी पड़ रहा है। तो ये आयतल कुर्सी का कहाँ एहतराम है मेरे भाई? आयतल कुर्सी तो जब हम पढ़ेंगे अगर तो भाई वो फरिश्ते हमारी हिफाजत करेंगे ना, कि बस लटका के टहल लें और सारा काम हो जाएगा। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है ऐसे कि अगर अगर हो तो कोई नमाज की जो भाई वो किताब होती है उसको गले में बांध लें, बस नमाज पढ़ने ही काहे के लिए भाई? नमाज तो हमारे साथ ही है, पढ़ के क्या फायदा पांचों टाइम? तो ऐसे तो पूरा दिन का बेड़ा गलत हो जाएगा। ऐसे तो हमने भाई वो रमजान का महीना आया और हमने उतार लिया अपने भाई वो सीने पे रोजा, बस ठीक है, रोजा उतार लिया और भाई वो अब काहे के लिए रोजा रखना, भूखे प्यासे रहना? तो जब जब सब कुछ लटकाने से ही हुआ जा रहा है तो करके भाई कौन सा फायदा मिल जाएगा? मैं बोल रहा हूँ सुनिए कि अगर कोई इंसान तावीज पहनता है और उसका एहतराम भी करता है, जानता है कि कुरान की आयत है, उसको नहाते वक्त भी उतार लेता है,
اور بعد میں بیت الخلا میں جاتے وقت بھی نہیں تو پہن کے جاتا ہے، تو سب وہ جائز ہے؟ نہیں تو وہ پہنتا کیوں ہے؟ میرا سوال بھائی یہ ہے، وہ کہاں اتارتا ہے کہاں نہیں اتارتا ہے وہ تو دوسرا سوال ہے، پہنتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تعویذ پہننے کی؟ پہنتا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پڑھتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس کو پڑھنا بھی چاہیے کہ میں اس لیے پڑھوں کیونکہ بھائی یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے. ہاں کوئی انسان پڑھتا بھی ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے تو اگر وہ قرآن پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا. قرآن کی آیات ہے کہ جو بھائی یہ قرآن ہے بھائی یہ شفا ہے، اور دوسری آیت میں یہ ہے کہ جو بھائی مطلب بھائی یہ شہد ہے، شہد میں شفا ہے. اب شہد میں شفا ہے تو کیا آدمی بھائی وہ ڈابر ہنی کی بوتل کو گلے میں باندھ کے ٹہلے گا؟ بھائی شہد کو کھائے گا، چاٹے گا، لگڑے گا، لگائے گا، اس کے بعد اس کو آرام ملے گی نا. اسی طریقے سے بھائی وہ قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کی دعوت دوسروں کو دے گا تو اس کو بھائی وہ آرام ملے گا، شفا ملے گی. دیکھیے دین پر قیاس ہم نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم نہ ہی اللہ کے فرمان کے آگے جائیں گے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث. تو آپ جا رہے ہیں نا اللہ اور اللہ کے نبی کے آگے، ہم تو اللہ اور اللہ کے بھائی کو نبی نے جتنا دے دیا ہم بھائی اتنے پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. سن لیجیے حدیث سن لیجیے. بھائی ہمیں بھی تعویذ پہننے کا بڑا مطلب بھائی وہ دل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رکھا تعویذ آ رہا ہے 1800 روپے کا ہے، اس کو پہن لیجئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ہم بھی لالچی ہیں بھائی، ہمیں بھی اپنے کاروبار میں برکت چاہیے، بیماریوں سے بھائی دوری چاہیے، تو ہم بھی سوچتے ہیں لاؤ یار اللہ رکھا تعویذ کو بھائی وہ منگوا لیں. لیکن صرف اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان سے تو رکے ہوئے ہیں. آپ سنیے گا تو آپ جی بتائیے. حضرت سہیل بن حنیف فرماتے ہیں کہ ہم تالاب کے پانی سے گزر رہے تھے، میں نے اس میں گھس کر نہا لیا. جب میں نے نہا کر نکلا تو مجھے بخار ہو چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ثابت تو کہو کہ تعویذ لے لو. میں نے کہا یا رسول اللہ دم نہ کروا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دم سے سانس کی بیماری یا بخار کانٹے کا ہوتا ہے. اور حاکم المصدق کہتے ہیں حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا. ایک حدیث یہ ہے اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. نہیں جو یہ آپ نے ہاتھی کی حدیث پیش کی ہے بھائی یہ مطلب بالکل ارشد بھائی یہ ضعیف حدیث ہے. ثابت کیجیے نا. ضعیف ہے خالی ضعیف بول دینے میں تھوڑی نہ ہوگا. تو آپ ثابت کیجیے نا بھائی یہ مطلب حدیث بھائی مطلب بھائی صحیح ہے. آپ کے صحیح بولنے سے تھوڑی نہ ہو جائے گا. اب میں تھوڑی نا صحیح بول رہا ہوں، جو اس کتاب کی مصنف ہے حاکم المصدق وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو میں تھوڑی نا بھائی میں وہ بول رہا ہوں صحیح. تو محدثین کا اصول بول رہا ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث سے ٹکرائے گی نہیں. اور اللہ کے نبی نے کم سے کم 18 حدیثیں آتی ہیں بھائی جس میں کہا گیا ہے کہ تعویذ کو مت پہنو، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے. اور اللہ کے نبی نے بیعت بھائی نہیں لی، اور کبھی زندگی میں اللہ کے نبی نے بھی نہیں پہنی، نہ ہی صحابہ نے اس کو پہنا، نہ ہی صحابہ نے اپنے بچوں کو پہنایا. اب ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ایک ضعیف حدیث کو لے کے کیا انسان مطلب بھائی وہ تعویذ پہننا اسٹارٹ کر دے گا؟ اچھا جناب یہ بتائیے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت نہیں لی تھی وہ کیا وہ قرآن کی آیت والی تعویذ پہن کے آئے تھے؟ میں تعویذ کی بات کر رہا ہوں. تعویذ کوئی بھی ہو، قرآنی ہو چاہے بھائی وہ غیر قرآنی ہو. اچھا تو وہ اچھا ٹھیک ہے. تب ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کے لیے پہلے منع کیا تھا، آپ کو یہ پتا ہے؟ دم کرنے کے لیے منع کیا تھا. دم کرنے سے بھی منع کیا تھا. کب؟ حدیث دوں گا آپ کو. یہ تو دیجیے نا میرے بھائی. دم کرنے کے لیے منع کیا تھا، میں پورا بتا دے رہا ہوں. اس کے بعد اب ریفرنس مانگی ہے تو ان شاء اللہ واٹس ایپ میں سینڈ کر دوں گا. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم مجھے سناؤ. رسول نے وہ سنایا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس میں شرکیہ اور کفریہ عبارت نہ ہو تو دم جائز ہے. تو جب دم میں شرکیہ اور کفریہ عبارت نہیں ہونے کی بنیاد پر دم جائز ہے تو تعویذ میں شرکیہ اور کفریہ عبارت ہونے پر کیسے اتنا جائز ہو؟ تو یہ کہیے نا کہ آپ نے بھائی وہ دم کے اوپر سے آپ نے قرآنی تعویذ کے اوپر قیاس کیا ہے نا. قرآنی تعویذ میرے پاس چیز سے ثابت نہیں ہے، آپ نے خود ہی مان لیا. میں ابو داؤد کی دو حدیث پیش کروں گا جس میں عبداللہ ابن عمر بھائی دیکھیے اللہ کے نبی کا جب بھائی وہ انتقال کا ٹائم تھا، وفات کا ٹائم تھا، اس دنیا سے جانے کا ٹائم تھا، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود دم کر کے اللہ کے نبی کے اوپر بھائی وہ پڑھ رہی تھی. تو یہ تو جائز ہے دم کرنا، لیکن دم میں کوئی شرکیہ مطلب بھائی کلمات کو نہ ادا کرنا تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے روک دیا.
لیکن अगर तावीज भाई वो जायज होती तो अल्लाह के नबी भाई वो कहते ना अम्मी आयशा से कि तुम फालतू में भाई वो दम कर रही हो, मेहनत कर रही हो, एक काम करो सूर्य फातिहा सूर्य फलक सूर्य नास उतार के कागज पे लिख के मेरे बांधी दो परमानेंट। तो वो बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोला उन्होंने? उम्मत से इतना बड़ा अमल को छुपा के अल्लाह के नबी चले गए माज़अल्लाह आपके हिसाब से। अल्लाह के नबी ने साफ साफ साहबा से पूछा क्या मैंने पूरा दिन तुम तक पहुंच गया? तो साहबा ने कहा क्या आपने पूरा दिन हम तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना और तू गवाह रहना। तो अल्लाह के नबी ने सारा दिन पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि दम करो, लेकिन भाई वो शिरकिया कलिमात ना हो तो हम दम करेंगे। अब हम दम से कयास करके मतलब जादू टोना दुआ तावीज गंडे ये सब हम नहीं कर लेंगे, तो शैतानी कयास हो जाएगा ना। दे रहे हो कहाँ यार, तुम मुझे बोलने दे रहे कहाँ हो? तो अब बोलिए ना आप मेरे भाई, खुद ही मेरे भाई एक सवाल करते हो फिर चुप हो जाते हो ना। आपके पास दलील है ना कुरान है ना हदीस है, बस कयास कर रहे हैं आप। अरे तो मैं हाकिम मुस्तदरक की हदीस नहीं पेश कर रहा हूँ तो क्या करूँ? आप अरे हम आपको बुखारी की और भाई वो मुस्लिम की और मुस्नद अहमद की ऐसी ऐसी हदीसें पेश कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई कलाम भी नहीं है, और आप ऐसी हदीस पेश कर रहे हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं है, ना सनद का पता ना कुछ, बस उन्होंने नकल करके बोल दिया कि हाँ ये हदीस सही है। मैं सनद के साथ सुनाऊं? तो सनद, अरे भाई मैं कोई मुहद्दिसीन थोड़ी ना हूँ कि आप मतलब भाई वो सनद सुनाओगे तो मैं फौरन बता दूंगा, मेरे को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। नहीं आप ऐसा कहिए कि आप अपने मन मुताबिक हदीस को मानते हैं, जो आपके मुखालिफ जाती है हदीस को छोड़ देते हैं। भाई ये तो हनफियों का उसूल है, उसूल अल-खरकी सफा नंबर 7 पे उतरा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के खिलाफ कोई कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस आएगी तो उसमें हम तावील करेंगे। अगर वो हमारे मसलक के काबिल बन गई तो ठीक है, वरना उसको मंसूख समझा जाएगा। तो ये आप अपना उसूल मेरे ऊपर क्या फिट कर रहे हैं? हम लोग तो हदीस में जो आ जाएगा मान लेंगे, जो नहीं आएगा भाई कभी नहीं मानेंगे। सुनन अबू दाऊद शरीफ की 3 हदीसें हैं, हाकिम मुस्तदरक की हदीस है, आप तो डायरेक्टली ज़ईफ कह दे रहे हो। तो मैंने आपसे पहले बता दिया था कि एक भी सही हदीस तावीज पहनने के ताल्लुक से नहीं है, ठीक है। ज़ईफ हदीस भी आई हुई है, मौजू हदीस भी आई हुई है। मैं 2 हदीस दिया हूँ। अभी मौजू हदीस आपको बताए, आप उसको मानोगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें सूखी हड्डी भी मिल जाए तो फातिहा दे के उसका इस्तेमाल कर लो, आप इसको मान लोगे सही हदीस? अरे तो भाई मैं उसके सनद के जो इस्माल रिजाल जो मुहद्दिसीन ने जिसका जिक्र किया तो मैं उसको खोजूंगा, पक्ष तो नहीं कह दूंगा कि मौजूद है। अरे मेरे भाई ये आप भाई ये आपके मतलब भाई कितने सारे आलिम है जिन्होंने मतलब भाई इस हदीस को मतलब भाई वो हसन कहा है, हसन। अच्छा कि आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में आपको हड्डी भी मिल जाए तो फातिहा दे के खा लो। अच्छा मेरे आलिम ने कहा है। आप कौन हो मेरे भाई? हनफी आलिम हो ना? मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे आलिम ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा है ना। हाँ तो भाई आपके लिए तो आपके आलिम का कौल हुज्जत है ना। अरे यार सही ज़ईफ का उसूल किसने बनाया? मुहद्दिसीन ने ना बनाया है। तो उससे आपको क्या लेना देना? आप तो मुकल्लिद हैं, जो आपके मसलक के इमाम कह देंगे वो आप मान लोगे, आप तो तकलीफ के कायल हो। अरे मेरे भाई हम तकलीफ उस मसले पे करते हैं जिसमें इज्तिहाद की दखल हो। तकलीफ हम उस मसले पे करते हैं जिसमें इज्तिहाद की दखल हो, जिसमें इज्तिहाद की दखल नहीं हो। और अकीदे में तकलीफ हम नहीं करते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, कितना बड़ा झूठ बोतान बांध दिया आपने। अकीदे में आपकी मतलब भाई वो अकीदे में आपके वहाँ भाई तकलीफ होती नहीं है भाई अभी। अच्छा चलिए भाई ये बताइए, अल्लाह के नबी के जो माँ बाप थे भाई वो ईमान वाले थे या नहीं थे? नहीं आप पढ़ाई हम चले। अल्लाह के नबी के माँ बाप भाई वो ईमान वाले थे या ईमान वाले नहीं थे, बताइए जरा। तो मैंने अहले फितरत में शुमार किया। हमारे नजदीक मोमिन। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलिए, तो जोर से बोलिए तभी तो आएगी। अरे पहले जो मौजू हो रहा है उस पे तो बात कर लीजिए। नहीं अकीदे में आप तकलीफ करते हैं कि नहीं, इससे बात साबित हो जाएगी ना, फिर आगे बढ़ते हैं। आप अल्लाह के नबी के वालिदैन को मोमिन मानते हैं या काफिर मानते हैं या ईमान वाला मानते हैं या ईमान वाला नहीं मानते हैं?
करते हैं नहीं करते हैं वो तकलीफ के मकसद से, अभी तारीख से बात हो रही है ना। तो मतलब आपने मान लिया ना कि आपके वहाँ भी अकीदे में तकलीफ होती है? बाद में भी तकलीफ से मौजूद नहीं चल रहा है। तो झूठ क्यों बोलते हैं मेरे भाई? एक तरफ अपने आप को बचाते हैं, दूसरी तरफ भाई आप जाके अटक जाते हैं। अभी से नहीं आपके इमाम, अच्छा ठीक है सुन लीजिए, आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक अल्लाह के नबी के माँ बाप जो थे वो काफिर थे, ठीक है? अच्छा, अब आप उनकी तकलीफ आप कर लीजिएगा। अभी नबी सल्लम के वालिदैन का ईमान और कुफ्र मौजूद नहीं चल रहा है, अभी ताबीज भाई फिकुल अकबर में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का कॉल भाई ये नकल किया गया है कि अल्लाह के नबी के वालिदैन उनका इंतकाल भाई कुफ्र पर हुआ। क्यों भाग रहे यार? तो आप अपने हनफी आलिमों की नहीं मानते, अपने इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते, सबको तो आप मानते नहीं, तो आखिर आप मानते किसको हैं? अरे यार तुम हदीस को तो मानते हो, तो हदीस का इनकार क्यों कर रहे हो? तो कौन सी हदीस का इनकार किया भाई? मैंने दो हदीस, एक तो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे रसूल हसनैन करीमैन को भी ताबीज माना करते थे। हाँ ये भी ज़ईफ हदीस है मेरे भाई। अरे तो खैर तुम्हारे कहने से सही हो जाएगा यार। अरे तो क्या तुम्हारे कहने से सही हो जाएगा क्या मेरे भाई? तुम आलिम और देखो असल में देखिए, असल बात ये है कि भाई जो भाई ये मुकल्लिद होते हैं उनको सही हदीस ज़ईफ इनसे लेना देना नहीं है, ठीक है? आप अपने इमाम का कॉल पेश कीजिए कि आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा कि तावीज़ पहनना जायज़ है। अच्छा, हनफी वो सही हदीस ज़ईफ हदीस से क्यों लेना देना है? भाई देखिए, जो हनफी आलिमों के उसूल हैं वो ये है कि हमारे लिए इमाम का कॉल हुज्जत है। आप अपने इमाम से समझिए ना दीन को। आप डायरेक्ट काहे के लिए समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट अगर दीन को समझेंगे कुरान हदीस से तो आप भाई वो हो जाएंगे गैर मुकल्लिद। आप समझ रहे हैं? हमारे ही ना इमाम का कॉल हुज्जत है, आपके कुरान हदीस हुज्जत है ना। तो हमारे लिए तो है ये, तभी तो आपको पेश किया मेरे भाई बुखारी की हदीस और वो मैं आपको कितनी हदीस से पेश किया आपको मुस्नद अहमद की। मैं आपने जो हदीस पेश की उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तमीमा रखाना शिर्क है, जबकि ये हदीस जो है ये तवज्जुह है, जैसे मुस्लिम माने की ताबीज होती है, ठीक है? और भाई गाना कौन गा रहा है आपके घर में? हेलो, अरे कौन सी कव्वाली बजा दी मेरे भाई? भाई या तो आप एक काम करो, या तो नाथी आप गा लो या तो तावीज भाई पहन लो, दो में से एक काम करो। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, रास्ते से जा रहा हूँ, चलता हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे नजदीक तो हदीस हिज्जत है ना, तुम हदीस का इनकार कर देते। तो हदीस अगर कोई मेरे भाई कोई अहले हदीस हमको बताएगा और वो हदीस की तहकीक पेश करेगा तो हम फैसला करेंगे ना। अब आप तो हनफी मुकल्लिद हो, आपको हदीस समझ में भी नहीं आती, आप अपनी अकल से कह रहे हो हाँ जायज है, जाली हदीस में ऐसा है। आपको उस हदीस के ऊपर हुक्म भी नहीं मालूम है, जिरा भी नहीं मालूम है, कलाम भी नहीं मालूम है, तो आपकी बात का भरोसा कौन मानेगा? आपको अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का अता पता नहीं है तो आपको हदीस का भाई क्या इल्म होगा? अरे यार अगर कोई अहले हदीस आलिम अगर मुझसे कहेगा कि अप्पू बेटा आपने जो हदीस याली बताई है, याली हदीस सही है, ज़ईफ है, मौजू है, और वो अपनी तहकीक पेश करेगा तो हम उसकी बात मानेंगे, लेकिन आपके डायरेक्ट पेश कर देंगे तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। हम तहकीक अपनी चीज क्यों पेश करेंगे? जिसने हदीस की किताब लिखी इमाम हाकिम ने, उन्होंने कहा कि ये हदीस सही है। और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को नहीं लिया, और आप जाके मुकदमा पढ़ लीजिएगा सही मुस्लिम का कि उसके ऊपर जो हदीसें जमा हुई हैं वो किन किन भाई वो शर्तों से जमा हुई हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा मतलब? असल में आपको कुछ मालूम नहीं है हदीसों के बारे में भाई। हदीस एक फन है भाई, हदीस एक फन है। ये फन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला ने अहले हदीसों को दिया है। अहले हदीस भाई वो हदीसों का भाई फकीह है। आप समझ रहे हैं, हम लोग फकीह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप हाकिम अल-मुस्तदरक की हदीस को मानते ही नहीं कोई सा ना? अरे उनकी जो हदीस है वो भाई वो जो मुस्लिम की जो शर्तें हैं उनकी बुनियाद पे वो सही नहीं है ना, तभी तो उन्होंने उसको नकल नहीं किया। इमाम बुखारी और इमाम भाई वो मुस्लिम का मकाम आपको मालूम नहीं है, ठीक है?
एक इंसान अपने जानवर से झूठ बोल रहा था, अपनी ऊँटनी से झूठ बोल रहा था, तो भाई वो इमाम बुखारी ने उस हदीस से नहीं ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम। फोन कर दिया? हाँ भाई अपने आप ही कर गया। आप फोन करे थोड़ा भाई आराम से कल बात करते हैं, ठीक है? इस समय खाने का भी टाइम हो रहा है, वालिद साहब गुस्सा है। अरे खाने का टाइम ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना पूछ रहा हूँ कि जो मुस्लिम की शर्त से इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक की हदीस को नहीं मानी जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ वो देखना पड़ेगा ना, आपने जो हदीस भेजी है उसका देखना पड़ेगा ना, क्या है क्या है। अब मेरे को इल्म गैब थोड़ी ना है जो मैं यहाँ से बैठा बैठा बता दूंगा। इमाम मुस्लिम अल्लाह है या रसूल है, बताइए। इमाम मुस्लिम अल्लाह है या रसूल है? आपके नजदीक दो अल्लाह रसूल, पहले हदीस के दो रसूल, ठीक है। अब तो आप तीसरा रसूल तो कहाँ से बना रहे हैं? या तो फिर आप मतलब पहले हदीस कहना छोड़ दीजिए। यही वाला सेम सवाल आप इंशाल्लाह कल पूछिएगा तो बड़ा अच्छा आपको जवाब देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मैं आपका जवाब सुन चुका हूँ उससे पहले भी, यही वाला, ठीक है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब दूँ का जो कलाम है वो हमारे लिए हुज्जत है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम में फरमाता है कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो इल्म वालों से पूछ लो। तो हदीस का हमें अगर इल्म भाई नहीं है तो जिनको हदीस का इल्म है, जो टॉप के मुहद्दिसीन है, हम उनकी राय पे चलेंगे, आपकी राय पे नहीं चलेंगे। अच्छा तो फिर आप अपने आप को पहले हदीस क्यों चलवाते? मुतलकन अहले हदीस, ये क्या लगता है? सही अहले हदीस, सही अहले हदीस, हदीस का मतलब सब हदीस, आप अपने आप को अहले हदीस क्यों चलवाते? हदीस से मुतलक अहले हदीस, हदीस जो हो गया मुतलक हो गया। देखिए अभी आपको मानना पड़ेगा। देखिए अभी मैं आपसे कहूँगा कि भाई ये 100 रुपए का नोट है, ठीक है? तो आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि ये सही नोट है, ज़ईफ नोट है, नकली नोट है। जब मैं कह रहा हूँ कि 100 का नोट तो भाई वो ऑटोमेटिक भाई वो असली ही नोट होगा। हाँ जब मैं आपसे कहूँगा ये है 100 का भाई ये नकली नोट, तो आप समझेंगे कि भाई जो ये नोट है ये नकली है, ये असली नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम अपने आप को कहते हैं अहले हदीस, तो वो ऑटोमेटिक जो सही हदीस होती है हम उसी पर अमल करते हैं। अच्छा कोई इंसान नोट देगा तो असली जरूर तो असली होना नहीं, ऐसे तो फिर आप भी अपने आप को हनफी काहे के लिए कहते हैं? आप भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तो तकलीफ करते नहीं है, आप तो आज के आलिमों की तकलीफ करते हैं ना। अगर आपके मस्जिद के जो इमाम हैं उनका नाम अहमद है तो आप भाई अहमदी हुए ना, आप हनफी कैसे हो गए? हम तो इमाम, हर कोई भी इमाम बताता है ना, तो हाँ मतलब अपने लिए दूसरा उसूल, हमारे लिए मतलब भाई दूसरा उसूल। वाह रे वाह, क्या इंसाफ है। उलमा बताते हैं ना, हमारे उलमा बताते हैं तो फतावा से देख के बताते हैं, खुद अपने से नहीं बताते, ठीक है ना? नहीं अपने से बताते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कितने फतवों को कॉल को रद्द कर दिया गया है, आपको यही नहीं मालूम है? मैं ये कह रहा हूँ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक भाई वो शव्वाल के 6 रोजे रखना बिदअत है, लेकिन आज के हनफी आलिम शव्वाल के भाई जो 6 रोजे हैं उसको रखते हैं। आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो हकीका है, हकीका बच्चों का करना बिदअत है, लेकिन आज आपके हनफी आलिम अपने बच्चों का हकीका भाई करते हैं। तो आपके भाई आलिमों ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह को छोड़ दिया ना? नहीं इसको पता चल गया, गैर मुकल्लिदी मौजू से बहुत भागता है, ठीक है ना भाई? हम लोग आपको आपकी जो असलियत है जब उस पे ला देते हैं तो आप लोग के एकदम पसीना पसीना निकल आता है। आप एक काम कीजिए, पसीना पूछ लीजिए, आराम से बात कीजिए। हम तो तहदीस से बात कर रहे थे, आप तकलीफ से चले गए। नहीं तो आप मेरे भाई जो दूसरों को उसूल फिट करते हैं वो अपने लिए भी तो बनाइए। हमारे लिए उसूल देखिए, मुकल्लिद जो होता है ना वो मसाइल शुरूया में इमाम अबू हनीफा की तकलीफ करता है, ठीक है? अच्छा ऐसा कौन सा मसाइल आपको आज तक पेश आया जिसमें आपको तकलीफ करने की जरूरत पड़ गई इमाम अबू हनीफा की? एक मसाइल बताइए। तकलीफ तो क्या है ना, बहुत लंबी बहस है। नहीं लंबी नहीं, एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा मसला आपको अपनी पूरी जिंदगी में आ गया जिसमें आपको इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीफ मतलब भाई करना मतलब वाजिब हो गया आपके लिए? ऐसा कौन सा मसला पेश आया? जो फिक्स का उसूल हुआ ना वो आइमा अरबा ने मिल के बनाया। अब जो नए नए मसले आते हैं आइमा अरबा ने भाई नहीं बनाया, लोगों ने बनाया, ठीक है ना? तो अल्लाह ने बनाया ना अल्लाह के नबी ने बताया और ना ही आइमा अरबा ने ये सब उसूल बनाए, ये आप लोगों ने उनके नाम से बना दिया है।
अब मैं तो फिर इस पे कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे कुछ इतना तो बोलिए ना मेरे भाई, सच कड़वा होता है, मेरे को मालूम है। नहीं, इमाम मुस्लिम की शर्त के मुताबिक हाकिम मुस्तदरक की हदीस को नहीं माना जाएगा, वो आपने इस बात को कैसे मान लिया? मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा कि भाई जो ये हाकिम में जो हदीस आई है वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इसको नहीं लिया है, और क्यों नहीं लिया है तो इसके लिए आपको भाई वो मुकदमा पढ़ना पड़ेगा सही मुस्लिम का कि उनकी भाई वो शराइत क्या क्या है। तो ये मैंने आपको एक राय दी थी कि आप पहले पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, उसके बाद मेरे भाई वो दलील पेश किया कीजिए। मुझे वो मतलब बताइए, मुझे ये बताइए क्या अल्लाह या उसके रसूल ने ये कहा है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीस को लेना वही मेरी असल हदीस है, बाकी हदीस को? हाँ बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा तो फिर मुझे दलील दे दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी, और इमाम बुखारी और जो इमाम भाई वो मुस्लिम है ये अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों के सबसे टॉप के मुहद्दिसीन है। इसके ऊपर तमाम अहले सुन्नत वल जमात के भाई अहले इल्म का इजमा है, और इजमा का जो मुनकिर होता है वो काफिर होता है। मैंने इनकार तो नहीं किया, मैंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह से तो सवाल क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? मतलब जब आप पहले से आप भाई इकरार करते हैं तो फालतू इनकार काहे के लिए कर रहे हैं? हम ये बात देखिए, इजमा होना अलग बात है, लेकिन उसका इनकार करना अलग बात है। आपने डायरेक्टली हाकिम मुस्तदरक की हदीस का इस शख्स से इनकार ही कर दिया। अरे मैंने इनकार कहा क्या मेरे भाई? अल्लाह ने या रसूल ने कहा हो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम तो नहीं, तो आपने मेरे भाई वो मतलब बुखारी की जो हदीस थी आपने उसका इनकार कर दिया, ठीक है भाई, वो मुस्नद अहमद की हदीस थी उसका इनकार कर दिया ना, आपने अपने हनफी इमाम का कॉल पेश किया कि ताबीज पहनना जायज है, ना अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की साबित किया कि ताबीज पहनना जायज है। लेकिन हमारा तो दोनों हदीस पर ईमान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमीमा लटकाना शिर्क है, और उलमा फरमाते तमीमा उस चीज का नाम है जिसको कुफरी इबादत किससे इबादत है, ठीक है। और अच्छा, इसको मानते हैं ना आप शिर्क है? जी, जिसमें कुफरी का इबादत और चलिए ठीक है भाई, तो ये कुफरिया है और शैतानी अल्फाज वाले जो भाई वो कलामात हैं उनकी ताबीज बांधना, लटकाना, ठोकना, फूकना, ये सब भाई शिर्क है। इसको आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब आ जाते हैं कुरानी ताबीज के ऊपर। अब आप कुरानी ताबीज की एक हमको ऐसी दलील दे दीजिए कि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी जिंदगी में कुरान को लटका के टहला हो, तो इंशाल्लाह हम भी टहलेंगे ना। अच्छा, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बादशाह जहन्नम में। हाँ, तो एक जो भाई वो जन्नत में जाएगा वो कौन होगा ये नहीं बताया? अमल करेगा, यानी सहाबा की सुन्नत और नबी के तरीके पर होंगे। तो अब आप या तो नबी के तरीके को अपना रहे, सहाबा की सुन्नत को छोड़ दे रहे हैं। तो यही तो आपकी समझ में नहीं आया ना, आपके अकल की कमी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई वही कामयाब होगा जो माँ आना है वह असाबी पर होगा, यानी कि भाई वो आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे साहबा हैं, यानी कि नबी पहले उसके बाद साहबा। तो आप पहले नबी से साबित कीजिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कुरानी ताबीज बांधा हो, उसके बाद आप भाई भाई वो अबू बकर, उस्मान, ठीक है, उमर, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके अखबार पेश कीजिए कि इन्होंने ताबीज बांधा है, तो इंशाल्लाह हम भी बांधेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो माना जाएगा, उसके बाद सहाबी रसूल का माना जाएगा, ठीक, ये हम भी मानते हैं। लेकिन जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, अगर सहाबी रसूल से साबित, आप उसको क्यों नहीं मान रहे? हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। तो अब आपका ये दूसरा स्टेप जो था कि अल्लाह के नबी से भी कुरानी ताबीज बांधना साबित नहीं है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह माना। अब आते हैं साहबा पे। साबित है, लेकिन हदीस कितने तरीके की होती है? अच्छा ठीक है, कहना मतलब अल्लाह के नबी ने पुरानी ताबीज पहनने का हुक्म दिया, बताइए जरा। बताया तो कहाँ बताया? मुस्तदरक में भी यही हदीस मौजूद है, क्या है? जामे तिरमिज़ी में भी यही हदीस मौजूद है। ताबीज देने क्या का क्या हुक्म दिया, ताबीज क्या? कहने लगे कि दम न करवा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दम सिर्फ बुखार और दूसरी बीमारी के लिए तुम ताबीज लो, ये हुक्म। ये हसन दर्जे तक हदीस पहुंचती है। तो जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में भाई वो चाकू मार दिया गया था, खंजर मार दिया गया था, तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहे क्यों नहीं कहा कि आप ताबीज बांध लीजिए, या उन्होंने खुद क्यों नहीं बांध ली ताबीज? अच्छा, सवाल
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भाई वो फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे। अंधेरे में नमाज होती थी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अहले हदीसों की होती है अंधेरे में फर्ज नमाज, ठीक है। तो भाई ये फज्र की नमाज में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भाई पेट में उनके चाकू मार दिया गया, खंजर मार दिया गया, और उनकी आंतें जो थी भाई वो कट गई थी। वो कुछ भी मतलब भाई खाते पीते थे वो सब बाहर हो जाता था। तो ना तो उनके बुखार था ना ही कुछ था, तो उनको भाई वो दम नहीं करना चाहिए था ना, उनको तो कुरानी ताबीज बांध लेना चाहिए था। तो उन्होंने क्यों नहीं बांधा? तो वो दम करवाते थे। तो वो दम करवाते थे? नहीं, मेरे को नहीं पता। दम तो आपके नजदीक जायज है, तो दम करवाते होंगे शायद। हाँ करवाते होंगे, इसका सबूत मेरे पास भाई नहीं है ना, तो जिस चीज का सबूत नहीं वो मैं कैसे कहूँगा। अरे तो फिर जब आप कह रहे हैं कि ताबीज क्यों नहीं लिए, तो फिर मैं तो ताबीज का सबूत आपके पास आप दीजिए ना भाई, कुरानी ताबीज के अलावा आपका है, मेरा थोड़ी ना है। दम तो जायज है ना, दम तो जायज, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो दम तो देखिए जो चीज आप मानते हैं वो हम भी मानते हैं, लेकिन कुरानी ताबीज को आप मानते हैं हम नहीं मानते ना, तो दावा आपका है तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। अरे आपने देखिए पहले मैं बात कुछ करना, आपने भाई मुद्दई की देखिए जो मुद्दई होता है दलील भाई वो देता है, तो मुद्दई आप है ना कुरानी ताबीज जायज होने के। यही खराब आदत है आपकी कि आप बीच में बहुत अच्छा भाई चलिए मेरे खाने का टाइम हो रहा है, ठीक है भाई 11 बजने वाला है। बस एक बात बोल के खत्म कर रहा हूँ कि आपने भी मुझ पर इल्जाम लगाया ये बात का कि जब अगर ताबीज जायज होता तो क्यों जब चाकू भोंका गया तो क्यों ताबीज देने का हुक्म नहीं दिया? नहीं, चाकू भोंकने के बाद भी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरानी ताबीज को बांधा, काहे के लिए नहीं? भाई जायज था तो बांधना चाहिए था ना। तो दम तो जायज था, तो दम करवाना चाहिए था ना। हाँ तो दम किया होगा ना, मेरे को क्या मालूम उसमें। वाह, तो ताबीज भी लिया होगा ना, मेरे को क्या मालूम। हाँ भाई देखिए दम के ऊपर तो कोई इख्लाफ नहीं है, ताबीज के ऊपर है ना, तो आपको ताबीज का पक्का सबूत देना पड़ेगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको अगर दम जाए तो दम करवाना चाहिए, तो ताबीज रखें। तो आप इनकार नहीं तो आप एक बार इनकार तो कीजिए कि जो दम कराना है भाई ये जायज नहीं है। मैं इनकार क्यों करूँगा? तो फिर जब आप एक चीज, लेकिन हम तो इनकार कर रहे हैं ना कि कुरानी ताबीज पहनना भाई ये जायज नहीं है। दम करवाना आपने जायज था? असल में आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आपको मालूम है कुरानी ताबीज पहनने का कोई सबूत दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आप फालतू की बहस में लगे हुए हैं। आप समझ कर अनजान बन गए हैं कि दम जायज था। भाई हम समझ के क्या अनजान बन रहे हैं? हमने तो कुरानी ताबीज में ना तो आज तक अल्लाह के नबी को देखा, ना ही भाई किसी सहाबा को देखा, ना ही ताबई को देखा, ना ही तबे ताबई को देखा। बड़ी मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बांधते हैं, वो सब ज़ईफ़ हदीस है मेरे भाई। हसन हदीस है, हसन ज़ईफ़ नहीं है। अरे हसन मेरे भाई अभी आपको हुक्म मालूम नहीं है क्या चाहते हैं। और इमाम तिरमिज़ी के नजदीक हसन जो हदीस है वो सही के मुकाबले में होती है। तो पता है इमाम तिरमिज़ी के नजदीक जो हसन हदीस होती है वो एक मतलब वो सही के लगभग होती है। इमाम तिरमिज़ी तो जो भाई अब्दुल्ला बिन मसूद वाली जो भाई वो हदीस है, ठीक है, तरके रफ़ादैन की, उसको भी हसन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में भाई वो ज़ईफ़ हदीस है। उसमें सुफियान सौरी जो है भाई वो मुदल्लिस है, तो क्या आप उसको भी मान लेंगे? तो बोले समझ में नहीं आया बात। वो आपकी समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, आप इंशाल्लाह कल फोन कीजिए, आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब कल फुर्सत तो नहीं मिलेगी अब। चलिए ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपको भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब खैरियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज गरीब भाई की याद आ गई यार। अरे नहीं मेरे भाई, हम आप लोग कहाँ गरीब हो, हम गरीब है मेरे भाई। अरे हम गरीब है यार, हम कहाँ इतने बड़े। और सुनाइए, कारोबार माशाल्लाह आपका अच्छा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस अपने आप अपनी सुनाइए, कैसा आपका तब चल रहा है कारोबार, धंधा पानी? अच्छा मतलब भाई वो क्या बोलते हैं जकरिया भाई, हाँ एक चीज बताइएगा एकदम सच सच। हाँ। अभी मैंने आपसे पूछा आपका कारोबार अच्छा मतलब एकदम अच्छा भाई वो चल रहा है, तो आपने कहा कि हाँ अल्लाह सुब्हानो तआला का एहसान है, रहम है, करम है, ठीक है, लेकिन कारोबार के लिए तावीज आप फिर काहे के लिए बांधते हैं? हेलो हेलो
भाई तावीज आप फिर काहे के लिए बांधते हैं कि आपका कारोबार अच्छा चले? अरे भाई इससे हमारा अकीदा है। तो वही तो बता रहे हैं ना, तावीज से अकीदा है ना, तो फिर अल्लाह को बीच में आप काहे के लिए लाए? अरे अल्लाह तो सबका, वो तो गफूर रहीम है, वो तो है ही है अल्लाह पाक। वसीला जो बोलते हैं ना, मतलब अल्लाह तो है ही है, लेकिन अल्लाह खाली है, अल्लाह सुब्हानो तआला आपके काम का नहीं है, आपके काम की तावीज है। नहीं, अरे ये हमारे रोजी रोजगार में अल्लाह पाक मतलब ये तावीज अभी डालने से जो बला आने वाली रहती है वो सब चल जाती है। हाँ, यही मेरे को मालूम चला है, आपके भाई बता रहे थे कि आपने मतलब भाई वो तावीज बांध रखी है कि आपका रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मतलब एक्सीडेंट से बचने के लिए भी तावीज आने लगी। भाई ऐसी कोई तावीज हो तो बताइए कि आदमी मतलब भाई वो एक्सीडेंट मतलब भाई वो एकदम होने से बच जाए। नहीं देखो, जो होनी रहेगी वो तो होना है भाई। तो जो होना है तो वो होना है, तो तावीज बांध के फायदा क्या? अरे तावीज बांधने से ये फायदा है, देखो नजर वजर साया या किसी की दूर हो जाएगी, इसमें अल्लाह पाक का कलाम लिखा रहता है। तो अल्लाह पाक का कलाम भाई उसके अंदर भाई वो होता है ना, आप उसको पढ़ते थोड़ी ना हो। पढ़ते नहीं है तो किसी ने भी तो पढ़ के इसमें डाला, हम उसमें अगर पढ़े लिखे रहते तो हम खुद ही बना के न डाल लेते। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे होते तो भी मतलब भाई तावीज ही बांधते? अरे एकदम कोई लेकिन अच्छा, आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मेरे को भाई ये मतलब भाई तकलीफ है, हाथ में दर्द और पेट में दर्द, तो डॉक्टर साहब जो पर्चा देते हैं तो उसको बांध के आप खाली भाई वो पहन लेते हो तावीज की तरह? हेलो भाई डॉक्टर साहब जो आपको देते हैं पर्चा दवा का कि ये दवा जाइए खरीद लीजिए, खा लीजिएगा आराम मिल जाएगी, तो क्या आप उस पर्चे को बांध के भाई वो टांग लेते हो गले में? देखिए वो डॉक्टर भी एक जरिया है, बीमार हुए हैं हम तो हम दवा भी कराते हैं, दुआ भी कराते हैं, दोनों कराते हैं। तो दवा जब आप कराते हैं तो डॉक्टर साहब जो पर्चा आपको लिख के देते हैं, क्या वो भाई वो आप बांध के अपने गले में टांग देते हैं? नहीं, वो जाके हम दवा लेकर आते हैं, और दवा से अगर तो अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है वो अमल करने के लिए नाजिल किया है या उसको गले में बांधने के लिए? वो अमल करने के लिए नाजिल किया। मैं अपना ही वाकया बताता हूँ, आज से कम 10-12 साल पहले की बात है। मेरे पैर में ईद मिलादुन्नबी में हम लोग जुलूस निकालते हैं, ठीक, मेरे पैर में इतना सूजन आ गई थी कि मैं चल नहीं पा रहा। डॉक्टर बोला तुम्हारे पैर हाथ भर गई है, तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाबा के पास गया। बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बाबा के पास गए, फिर क्या हुआ? बाबा के पास गए, ताबीज लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, क्या नाम है बाबा का? नाम क्या है? उनको सब लोग बोलते हैं दारू खाना वाले हाफिज जी। दारू खाना वाला हाफिज जी? हाँ, दारू पीते हैं क्या वो? नहीं, वो एरिया का नाम है, जिसके नाम रहते हैं ना। भाई उनका नंबर होगा तो व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिएगा। अच्छा, दारू खाना वाले हाफिज जी का नंबर भेज दूँ? हाँ, जरा हम भी पूछेंगे आखिर ऐसी कौन सी ताबीज है। अभी मैं अगर उनके पास आके उनके हाथ पैर तोड़ दूं, क्या वो अपनी ताबीज से अपने हाथ पैर भाई वो जोड़ लेंगे? नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप यार, उल्टा सोचते हो यार। तो आप मेरे भाई उल्टा अमल करो, और हमने अगर पूछ लिया तो मतलब ये मतलब बहुत बड़ी आफत आ गई। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई वो जिसने ताबीज को लटकाया तो भाई अल्लाह ने उसको ताबीज के हवाले छोड़ दिया। अच्छा, तो अगर आप ताबीज भाई इस अकीदे से पहन रहे हैं कि ये ताबीज हमें बलाओं से बचाएगी, तो ये शिर्क है। ताबीज का लटकाना भी शिर्क है। अरे ताबीज से हमारा अकीदा है, उसमें हम लोग है। तो आपका अकीदा मेरे भाई गुमराही का अकीदा है, तभी तो आपकी इस्लाह कर रहा हूँ मेरे भाई। मेरे को डॉक्टर ने नहीं ठीक किया, मेरे को भाई ना तो आपको डॉक्टर ने ठीक किया, ना ही ताबीज ने ठीक किया, आपको अल्लाह सुब्हानो तआला ने ठीक किया। भाई ताबीज की क्या औकात है? अभी ताबीज को अगर हम कैंची से काट दें तो वो ताबीज अपने आप को नहीं बचा सकती है, तो वो आपको कैसे बचाएगी? वो अलग है जो आप बोल रहे हो ना, ये आप अलग पट्टी पे जा रहे हो, जो ताबीज काट दें या दरगाह पे मतलब आप लोग का। अच्छा, एक चीज बताइए, ताबीज में अगर इतनी ताकत है, अगर ताबीज को हम कैंची से हम खुद काट देंगे तो क्या वो अपने आप को बचा लेगी? ताबीज की तो इतनी औकात नहीं है कि वो अपने आप को बचा पाए, तो वो आपको कैसे बचाएगी? आपको बलाओं से, बीमारियों से, आफतों से भाई वो कैसे बचाएगी? आपको अगर बचने का है तो बोलो, मैं आपका यहीं पे बैठे ना
मैं दरगाह उनके हाफिज जी के पास जाऊंगा, आप क्या खाए हो क्या पिए हो, यहाँ बैठे बैठे वो हमारे ताबीज वाले बाबा बता देंगे आपको। भाई वो सब काहिन का काम है, काहिन, इनके पास हमजाद होते हैं जिन। आप एक काम कीजिए, अपने हाफिज जी से बोल दीजिएगा कि अफ्फू खान के ऊपर जादू टोना करके बता दे, अगर उनके दम हो तो मेरे ऊपर जादू टोना टोटका काला जादू जो उनके दम हो करके दिखा दे। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा अल्लाह की मदद से।